Hello everyone, I'm Dr. Muattar Hanif. I'm assistant editor at Dental News Pakistan and I'll also be the moderator for today's live session, Mental Health Amid Corona Pandemic. I'm so thrilled to welcome our speaker, Brigadier Dr. Maudat Hussain Rana. He's the chief editor of Journal of Pakistan Psychiatric Society, chairman the Healing Triad Pakistan, and the chairman of Department of Behavioral Sciences of University of Health Sciences, Lahore. He's also the director general of NUS Center for Trauma Research and Psychosocial Interventions. Dr. Rana is the author of 12 books and more than 50 national and international publications, and he's also the recipient of Sitar Imtiaz from Government of Pakistan. His interests include psychotrauma, health professional education, and psychosocial interventions in the field of mental health. He has now retired from Pakistan Armed Forces as brigadier after holding various academic, clinical, and teaching positions, including advisor in psychiatry and the founder commandant of Armed Forces Institute of Mental Health. He has been the Dean of Faculty of Psychiatry of College of Physicians and Surgeons, Pakistan. Please join us, Dr. Maudat, on camera and video, and hello. Assalamu alaikum. Walaikum assalam, sir. Thank you very much for that elaborate introduction, most of which I do not really deserve. You've been very generous. I think I don't know how many amongst us are from which age groups, but the medium and the things that we'll discuss would be about various aspects of COVID across various age groups, looking at the issues related to child, the adult, as well as old age. We'd be looking at things particularly from a COVID-19 angle right now, but some of these themes that we'll be discussing from a mental health perspective are generalizable on other walks of our life, even when we are not dealing with a crisis. अगर आप चाहें तो मैं इस सिचुएशन के बारे में थोड़ी सी बात to our audience ज़रूर करना चाहूँगा, after you permit me to do so. Sure. So the first thing that I'd like to share with everybody is to first of all understand that these are extraordinary times. Extraordinary times demand extraordinary mindsets. They demand extraordinary circumstances and reactions. Extraordinary times in our lives never persist. हम सबको याद है कि जब भी कोई बड़ा वाकया हमारी ज़िंदगी में हुआ है तो उसकी सबसे मज़े की बात या उसकी अच्छी बात ये होती है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, कि वो हमेशा नहीं रहता. ये जो एहसास है ये बड़ा ज़रूरी है. ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स परसिस्ट नहीं करते कभी. दो चीज़ें होती हैं, एक तो उनकी अपनी एक लिमिट होती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ों की, लेकिन दूसरी बड़ी खूबी ये होती है कि इंसान एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स में भी उनको ऑर्डिनरी बना लेता है. उन सर्कमस्टांसेस के साथ डील करना इतना अच्छा सीख जाता है कि वो चीज़ें जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी वो आहिस्ता 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 उसके लिए ऑर्डिनरी होने लगती हैं. सो इन दोनों खसूसियात की वजह से एक टाइम्स में खसूसियात है कि वो उनकी एक हाफ लाइफ होती है और धीरे 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 ख़त्म होती चली जाती हैं, और दूसरा खुद इंसान के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स के अंदर वो एडजस्ट कर सकता है. COVID-19 इज देयरफॉर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन. मैं इसमें दो पहलुओं पर खास तौर पर शुरू में ही बात करना चाहूँगा. एक ये कि COVID-19 is a serious, potentially fatal and a dangerous condition. There is no doubt about that. तो इसके बारे में जितनी बाकी बातें हैं वो बाद में होंगी, लेकिन ये तय है कि we are dealing with an enemy. That enemy is potentially very, very dangerous. It can damage us both in terms of disease, but this disease can lead to disability and even death. So, ये जो बुनियादी सी बात है, इसके ऊपर जब हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो फिर जो अगली बात मैं कहने वाला हूँ वो हमारे उस तरह से काम नहीं आएगी. इस बात को पहले तस्लीम कर लें. अगर हम इस तरह के माइंडसेट में हैं, नहीं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, फला हैं, ये है वो है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर हो रही है, या हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, हम तो अल्लाह के मानने वाले हैं, हम तो मोमिन हैं, बाकी सारे मर जाएंगे, हम जिंदा रहेंगे, वगैरह वगैरह. अगर इस तरह के आप मिथ्स में फंसे रहेंगे
तो ऑब्वियसली उसका आपको नुकसान है उस चीज़ में जो मैं अगली बयान करने वाला हूँ। कि जब आप ये तय कर लेते हैं कि आप एक डेंजरस सिचुएशन में हैं, तो फिर आपके लिए बहुत ईज़ी है अगली बात समझना कि हर डेंजरस सिचुएशन के लिए ह्यूमन बीइंग्स हैव डिज़ाइन्ड देमसेल्व्स एंड नेचर हैज़ डिज़ाइन्ड देम फॉर डीलिंग विद डेंजरस सिचुएशंस फ्रॉम द टाइम्स दैट वी वर क्रिएटेड। Over millennia, we have dealt with dangerous situations and we are great survivors, probably the best survivor that this planet has seen. So इस बात को ट्रस्ट करें, पहले डेंजरसनेस को एक्सेप्ट करें, फिर अपनी कैपेसिटी को ट्रस्ट करें कि कोई चीज, nothing that the nature has ever thrown at us has completely destroyed us. मैन एंड द सी एक बहुत बड़ा नॉवल लिखा गया अर्नेस्ट हेमिंगवे ने। उसने ये कहा है कि इंसानी स्पिरिट जो है ना, इसको आज तक डिफीट करने वाली कोई चीज पैदा नहीं हुई। तो जो चीज आपके काम आएगी वो ये थीम है, ये कॉन्सेप्ट है कि ह्यूमन बीइंग्स आर स्पेशल, दे आर अशरफुल मखलूकात, they have that spirit that no matter what comes their way, they have the capacity to deal with it. अब तीसरी बात है कि अगर ये दो बातें आपको क्लियर हो गई तो फिर आपको ये समझ आएगी कि हर वक्त सिर्फ एनिमी के बारे में जानते रहना जरूरी नहीं होता, अपनी कैपेसिटी के बारे में और उससे शार्पन करना और उससे ज्यादा इक्विप करना, उसको एट इट्स बेस्ट लेकर आना, ये बहुत जरूरी होता है। तो जब हमने तय कर लिया कि हमारा एनिमी है और इधर हम हैं, तो ये एक जंग की कैफियत होगी। जंग आप किस तरह जीते हैं? प्रिपेयर्डनेस से जीते हैं, ट्रेनिंग से जीतते हैं, फिटनेस से जीतते हैं। सो प्रिपेयर्डनेस, ट्रेनिंग, फिटनेस, ये तीन चीजें हैं जो कि अगर हमारे पास हुई तो हम ये जंग जीत जाएंगे। ना जो भी कोविड हैज टू थ्रो एट अस, वी विल विन इट प्रोवाइडेड वी मोबिलाइज दीज थ्री। तो अब ये चीजें तय कर लीजिए कि दो ऐसे रिएक्शंस हैं, अगर वो किसी भी इंसान के अंदर मौजूद होंगे तो उसके अंदर ना ट्रेनिंग हो सकती है, ना प्रिपेयर्डनेस हो सकती है, ना फिटनेस हो सकती है। वो दो रिएक्शंस हैं। पहला ये कि है ही नहीं मसला, एनिमी बड़ा कमजोर है, एनिमी है ही नहीं, मुझे कुछ हो नहीं सकता। ये एक डिनाइल की कैफियत होती है, जो कि एक इमोशनल सा रिएक्शन होता है जाए। तो ये इंसान ना प्रिपेयर्ड होता है, ना अपने आप को ट्रेन करता है, ना लुक आफ्टर कर पाता है, और ना ही ये जंग जीत सकता है इस डिनाइल की स्टेट। लेकिन इतना ही खतरनाक दूसरा माइंडसेट होता है जिसमें आप हथियार फेंक देते हैं खौफ में, फियर में, दैट माय एनिमी इज सो पावरफुल, इट हैज किल्ड thousands and thousands of people in Europe and अमेरिका, तो हम किस खेत की मूली हैं? जब वो कुछ नहीं कर सके इसका, तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। So this feeling of fear and paralysis within a human body and a mind and its spirit is also a disaster. तो ये दो माइंडसेट्स को आपने सबसे पहले अलग करना है। पहले एक्सेप्ट कर लेंगे ये होते हैं, ट्रांजिटरी होने चाहिए, ये इंसान का डिफेंस है, कोई हर्ज की बात नहीं है अगर वक्ती तौर पर हो। लेकिन अगर ये मुसलसल किसी शख्स के अंदर जा रहे हैं तो फिर दिस इज नॉट अ वेरी वेरी गुड मेंटल हेल्थ स्टेट टू गेट इनटू। हमें क्या क्या करना है इसके अलावा टू डील विद इट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर डिस्कशन टुडे। I think that has actually summarized the topic as well. So let's add some questions from our audience that we have asked them to drop their जी queries, and I've picked a couple of them and with mine as well. जी जी So the first question that we have is, what should I do if I have an existing mental health condition, and how to support myself during such tough times? ओके। So we, yeah. पहले तो मैं आपसे ये अर्ज करूं कि ज़्यादातर जो मेंटल हेल्थ कंडीशंस जिनमें ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनका ताल्लुक एंग्जाइटी से है, यानी वो लोग जो बहुत एंक्शस हैं या जनरली सैडनेस या ग्लूम या डिप्रेशन में होते हैं, अमेजिंगली उनकी कैपेसिटी डील करने की विद रियल चैलेंजेस लाइक कोविड-19 इमेजिन कर रहे होते हैं अपनी फियर्स और एप्रीहेंशंस को। जब कुछ नहीं होता इन पीस टाइम्स, वो बहुत कुछ इमेजिन कर रहे होते हैं, मैग्नीफाई कर रहे होते हैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा इन स्टेट ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। जब रियल लाइफ चैलेंजेस आते हैं जैसे कोविड-19 के, तो सरप्राइजिंगली दे डू वेरी वेल। इन फैक्ट दे डू मच बेटर देन पीपल
who are completely in charge in peace times. So we don't have to lose hope. If I have a mental health condition, then I'm going to be done in COVID-19. No, ऐसी कोई बात नहीं है. You can actually, particularly if you are under treatment and if you are already being looked after and you have your regular medication, you have your regular contact with the doctor, you have a very good chance of dealing with this situation much better than many people around you. Actually, you can help them deal with this situation. Having said that, there are certain conditions like obsessive compulsive disorder, there are certain types of psychosis, जहाँ पर आप चीज़ों को imagine बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं. और जब आपको इस तरह की कंडीशंस आती हैं जैसे कोविड-19 का इश्यू है, तो उसमें आपको वो वाली चीज़ें और ज़्यादा वो एग्रीवेट हो जाती हैं. आप वॉशिंग कर रहे थे, ऑब्सेसिव वॉशिंग और ज़्यादा हो जाएगी. थॉट्स आ रही थी और ज़्यादा होनी शुरू हो जाएंगी. डेंजरसनेस फील होती रहती थी इस बात की कि मुझे कोई डिजीज़ हो जाएगी तो अच्छा फिर अब तो हो ही जाएगी. अब तो उससे ज़्यादा खतरनाक मेंटल हेल्थ कंडीशन बात का ये होती है कि आपको फियर ऑफ हार्म टू योर लव्ड वंस. ये एक बहुत कॉमन सिचुएशन है जो कि डेवलप हो जाती है. मेरे बच्चे, मेरे मियाँ, मेरी घरवाली, मेरे माँ-बाप, मेरे प्यारे, मेरे दोस्त, उन्हें कुछ हो ना जाए. सो ये चीज़ें भी बहुत सिचुएशन को ख़राब कर रही होती है. सो अब क्वेश्चन आपका ये है कि करना क्या चाहिए? So first of all, understand that your best friends in any state of challenge, number one is your fit body, an extraordinary fit body. तो चाहे आपको mental health condition है या नहीं है, a fit body is going to always help you deal with COVID-19 situation better than those who have a fragile body. So आजकल आपके पास टाइम भी है अपनी फिटनेस ऑफ द बॉडी को एनहांस करने की. बहुत जरूरी है. A lazy and a lousy person like me also now finds time to do some physical exercise. So physical exercise, a good high protein diet, and taking care of the fact that too much of carbs and too much of jalebiyan and too much of gulab jamuns probably this is not the best time to take them. आजकल मैं थोड़ा सा ये देख रहा हूँ फिजिकली कि लोग चूंकि सारा दिन टीवी के सामने बैठे रहते हैं और चिप्स तल तल के खाते रहते हैं. मुझे इस बात का फिक्र है कि जिस दरवाजे से वो इस कमरे में एंटर हुए थे कोविड-19 से पहले, शायद वो इस दरवाजे से बाहर ना जा सके. ये एक बहुत बड़ा खतरा है जो कि होगा लोगों को अगर हम अपने खाने पीने पर इस बात का ख्याल नहीं करेंगे कि हमारी कैलोरिक रिक्वायरमेंट बहुत कम हो गई है because of the fact that we spend a lot of time sitting. So health, physical health, a solid, good, sensible diet is the first thing. दूसरी चीज जो आपको हेल्प करेगी वो आपका माइंड. अब यहाँ मैं अपने जो भी लोग इस वक्त हमारी बात सुन रहे हैं उनसे ये कहूंगा कि एक टर्म मैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ. वो टर्म वो लोग जो कि काम करते हैं उनको तो बहुत ही जल्दी याद हो जाएगी क्योंकि उसका मखफ़फ़ बड़ा सिंपल है, जो कि वो हर वक्त सुनते रहते हैं और उससे डरते रहते हैं. और जो लोग नहीं हैं उनको भी आसानी हो जाएगी जब मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा. इसको मैंने मखफ़फ़ बनाया ACR. अगर आप काम करती हैं तो आपको भी पता होगा कि ACR से हमें बड़ा डर लगता रहता है. एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जो कि तो हम लोग इसे एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिवेंज भी कहा करते थे. तो ये ACR में याद रहता है. तो ACR याद रखें. पहली चीज जो कि मेंटली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी इन योर फाइट, इट विल एनहांस योर इम्यूनिटी. और मैं हमारी इम्यूनिटी के साथ
वो हमेशा ज़्यादा बीमार होता है। गुलामी का जो ज़हन है ना, वो इनिशिएट नहीं होने देता इंसान के इम्यून सिस्टम को। तो ये कैफ़ियत खुददारी की, खुदी की, आज़ादी की माइंडसेट में बहुत ज़रूरी है, जिसको आप लेकर आएँ। अब ये आती कैसे? आती है सी से। जब आप कॉम्पिटेंट फ़ील करते हैं, यानी कि अगर आप इस दौरान में अपनी स्किल्स को बढ़ाना शुरू कर दें, तो आपको जो भी मेंटल हेल्थ कंडीशन है, इसको कभी बैरियर ना बनने दें इल्म बढ़ाने में और हुनरमंद होने में। ये टाइम है, इन दिनों में आप अपना इल्म भी बढ़ा सकते हैं और कोई ना कोई हुनर भी सीख सकते हैं। और मैं अपने ऑडियंस से कहूँगा कि देयर आर सेवरल universities around the world who have made their courses free these days, and you can download those courses and start to enjoy those courses. पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी, पाकिस्तान टेलीविजन के एक चैनल ने भी बच्चों के लिए, और बहुत सारे और यूनिवर्सिटीज ने अराउंड द वर्ल्ड हैव गिवन चांस टू पीपल टू एनहांस देयर नॉलेज एंड एनहांस देयर स्किल्स, साइकोमोटर स्किल्स। तो कोई भी शख्स जो कि ज्यादा आलिम होता है, ज्यादा हुनरमंद होता है, वो ज्यादा आजाद महसूस करता है। अगर मुझे जूते पहनने के लिए भी किसी की असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, अगर मुझे तस्मे बांधने के लिए भी किसी और की जरूरत है, अगर मुझे स्विच ठीक करने के लिए भी किसी और की ज़रूरत है, तो मैं काफ़ी बड़ा गुलाम हूँ। ये मौका है कि जहाँ मैं ये छोटी-छोटी चीज़ें सीख सकता हूँ, और इल्म के बढ़ाने से और हुनरमंदी बढ़ाने से क्या चीज़ होगी कि आपका ज़हन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और ईज़ी हो जाएगा, और ये जो ज़हनी कैफ़ियत आज़ादी के साथ पैदा होगी, ये आपके इम्यून सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगी। और तीसरी और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है रिलेटेडनेस। ACR, रिलेटेडनेस। रिलेटेडनेस का बहुत आसान तर्जुमा, अगर आप उसको बहुत फ़िल्मी ना समझें इस तर्जुमे को, तो वो बहुत सिंपल ये है कि मैं किसी का हूँ और कोई मेरा है। ये जो एहसास है, मैं किसी का हूँ और कोई मेरा है, ये बहुत ही ज़बरदस्त एहसास है। रिलेटेडनेस का, रिश्ते होने का, रिश्तों पर एतबार का, किसी के साथ होने का, किसी को अपने साथ महसूस करने का। ये एहसास इंसान के अंदर उस इम्यून सिस्टम को जगाता है, जिसकी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आज के प्रोग्राम में। जिस शख्स में देयरफॉर ACR होगी, फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी होगी, जिसके अंदर ये एहसास होगा कि वो हुनरमंद और आलिम है, जिसने अपने इस एहसास को बढ़ा लिया जेन्युइनली, और जिसको ये एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ, ना ख़ानदानी तौर पर, ना मुआशरती तौर पर, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं कनेक्टेड हूँ, मेरे साथ बहुत सपोर्ट है, बहुत लोग हैं जो मुझे चाहते हैं, और मैं बहुत सारे लोगों को चाहता हूँ। तो ये जो कैफ़ियत है, ये आपके अंदर एक इम्यून रिस्पॉन्स को जन्म देगी, ऐसा सोल्जर आपको बनाएगी, ऐसा आपको ज़बरदस्त पाक फ़ौज का जियाला बनाएगी, और ऐसा आपको ज़बरदस्त किस्म का गोरिल्ला बनाएगी कि आप को कभी प्रॉब्लम नहीं होगी कोविड-19 के साथ डील करने का, एंड you'd be immunologically much stronger to deal with the issue, whether you are a mental health patient or you don't have a mental health challenge. In both situations, if you work on these three situations, inshallah you will win this battle. Sir, what you have tips for health professionals who are coping with such crisis? Because doctors obviously are being overburdened, overexhausted, and if those who are not being in that field, they are being kind of burdened with the financial impact of coronavirus. So, what are you, what tips you can give to them? देखिए, मैंने बहुत शुरू में आपसे बात की थी। आई पर्सनली बिलीव दैट दिस क्राइसिस दैट Pakistan nation is in, the world is in, here doctors, nurses, paramedics, all three of them have to be on the front. मैं डॉक्टर हूँ, मैं रिटायर्ड डॉक्टर हूँ। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि इस बुढ़ापे में मैं आज भी सुबह तैयार होकर काम के लिए निकलता हूँ, जबकि आजकल निकलने पर पाबंदी है, क्योंकि मुझे घर नहीं बैठना। So there's no option for doctors, paramedics, and nurses to sit home. You have to be at the front. This is why you became a doctor. So you have to be out there. You have to be in the forefront. अगर आज भी आपने बाकी तमाम लोगों की तरह घर में बैठ के पुरानी फिल्में देखनी है, पुराने गाने सुनने हैं और सोना है, तो फिर मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कि यू नॉट रियली अ हेल्थ प्रोफेशनल। ये फिर आप वो वाले फौजी हैं जो फौज के दिनों में छुट्टी चला जाता है।
जंग के दिनों में वो फौजी छुट्टी चला जाता है, तो आप फिर वो वाले फौजी हैं। साहब ज़रा ऐसे फौजी को हम फौजी तो नहीं कहेंगे। सो ये टाइम है जहाँ पर यू हैव टू बी एट द फ्रंट। नाउ हैविंग सेड दैट, रिमेंबर, एक फौजी हमेशा उसी वक़्त कामयाब होता है जब वो बहुत स्किल्ड होता है। So you need to first of all start to learn more about COVID specific knowledge and skills. और जो नॉलेज और स्किल आप कोविड-19 के बारे में हासिल करें, उसमें पहली स्किल ये है हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। सो जैसे कि एक सोल्जर का जो हथियार होता है, वो उसको सबसे पहले बचाता है। जिन लोगों के लिए लड़ रहा है वो बाद में बचते हैं, लेकिन उसका हथियार सबसे पहला वो होता है जो उससे बचाता है। तो आप उसी वक़्त लोगों के काम आ सकेंगे, लोगों को लुक आफ्टर कर सकेंगे, इफ यू विल प्रोटेक्ट योरसेल्फ। डॉक्टर से मुझे ये थोड़ी-सी शिकवा है कि हम लोग अपने बारे में हर वक़्त एक सेंस ऑफ इनविंसिबिलिटी में होते हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता। So I have seen people who ignore everything that they tell others. तो मैंने बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट को जानते हैं, जो एक लंबा सा कष्ट लेकर अपने क्लाइंट को ये कहते हैं, देखिए आपको सिगरेट छोड़ देने चाहिए, इससे दिल की बीमारियां होती हैं। सो ये नहीं करना, हमें अंडरस्टैंड करना है कि नहीं, आई हैव टू एक्चुअली प्रैक्टिस फार मोर रिगरसली, नॉट वन लेयर, not two layers, but 3 layers of protection around me to make sure that I do not fall in that situation. तो जिस तरह से एक रोमन सिपाही आर्मर पहन के बाहर निकलता था, जबकि आम शहरी आर्मर नहीं पहनते थे, मुझे और आपको आज कोविड-19 के सामने आर्मर पहन के जाना है। उससे क्या होगा कि एक तो मेरी प्रोटेक्शन होगी, लेकिन दूसरा मेरे मरीजों के अंदर ये कैफियत और ये ख्याल पैदा होगा कि प्रोटेक्शन इज नॉर्मल। इफ अ डॉक्टर इज डूइंग दिस, then it must be awfully important to protect myself. So you will win at 2 counts. One, for yourself, and 2, you will set an example for people around you. Protection. So इल्म और हुनर अपना एनहांस करना है कोविड-19 के बारे में, पर्सनल प्रोटेक्शन करनी है, एंड गो आउट देयर एंड परफॉर्म, एंड डोंट सिट एट होम आइडल वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन कि नहीं। और यहाँ मैं फैमिलीज से खास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा कि हमेशा फौजी उतनी ही अच्छी जंग लड़ता है जितनी उसकी फैमिली की सपोर्ट उससे होती है। अगर डॉक्टरों की बेगमात और उनके बच्चों ने ये कहा, नहीं अब्बू आप नहीं जाना, बाहर बहुत खतरा है, और नहीं मियाँ तुम ना जाओ, देखो फिर हम यहाँ पीछे अकेले रह जाएंगे, तुम्हें कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, ये वाले डायलॉग्स फिलहाल थोड़े दिनों के लिए बंद कर दीजिए। और इसी तरह से मैं जो हमारे मेल्स हैं हु आर अराउंड, डॉक्टर्स हु आर फीमेल्स, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोविड-19 की फाइट में the female doctors are going to be as important as the male doctors. They have to go out there as well. तो उनको भी खुदा के लिए घर में चिप्स तलने के लिए और रोटियां पकाने के लिए ना रोक लीजिएगा. She is far more important than everybody at home. Let her go and deal and fight with this war with due protection, with due care. Sir, what are some of the things that we can help children with? Like, because of the lockdown, children are also being, suffered because of the situation. How can we help them? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि दिस इज अ ग्रेट टाइम फॉर एवरीबडी टू डिस्कवर द रियल टैलेंट ऑफ योर चिल्ड्रन. सो पहली तो रिक्वायरमेंट ये है कि दिस इज योर टाइम टू फाइंड आउट व्हाट दे आर केपेबल ऑफ. क्योंकि हर वक्त आपकी उनके साथ बड़ी वर्टिकल सी रिलेशनशिप होती है, यहाँ बच्चा होता है और यहाँ आप होते हैं. तो सबसे पहली तो रिक्वायरमेंट ये है कि इसको हॉरिजॉन्टल कीजिए. बिकम हॉरिजॉन्टल विद चिल्ड्रन, उनकी सतह पर आ जाएं, और फिर किसी किसी वक्त उनको चांस दें टू एक्चुअली रिवर्स द सिचुएशन. मैं बहुत स्ट्रांगली फील करता हूं कि आवर चिल्ड्रन ऑफ टुडे हैव अ लॉट टू टीच अस, ट्रेन अस, पार्टिसिपेट इन डिस्कशंस. तो उनको एक डोमिनेंट रोल घर में देने की कोशिश करें व्हाइल यू आर एट होम. फॉर एग्जांपल, अगर आपका बच्चा 7वीं जमात में पढ़ता है तो उसको कहें कि आपको माशरती उलूम दोबारा पढ़ाए, आपको जोग्राफिया दोबारा पढ़ाए, आपको इस्लामिया दोबारा पढ़ाए, आपको बताया कि जंग बदर में क्या हुआ था. जोग्राफिया पढ़ाया, आपको पहली दफ़ा पता लगेगा एक्चुअली ये कुस्तुन दुनिया कहाँ है और उसका आजकल क्या नाम है. सो ये रोल आप अपने घर में बच्चों की चेंज करके देखिए. दूसरा, जैसे मैंने आपसे अभी कहा था ना कि ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस और रिलेटेडनेस, ये तीनों चीजें आप अपने बच्चों के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं. उनको ऑटोनॉमी दीजिए बहुत सारी चीजें करने की. उनके अंदर कॉम्पिटेंस क्रिएट कीजिए ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स, ठीक है, एंड यू कैन एक्चुअली स्टार्ट टू पे देम. तो बहुत सारी चीजें जो नौकरों से करवाया करते थे आप,
खुदा न खास्ता मैं इक्वेट नहीं कर रहा बच्चों को उनके, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बहुत सारी स्किल्स जो कि आप पहले उन लोगों से करवाया करते थे जो आपके घर में आते हैं काम करने के लिए, ये बच्चों को चांस दीजिए और उनको पे कीजिए। लेकिन ये ना कीजिए कि उन्हें ना पे करें जो आजकल नहीं आ रहे, उनको भी पे करें, थोड़े से पैसे और खर्च करें, लेकिन बच्चों को भी ये सारे हुनर करने के दें जो कि आप पहले दूसरों से कराते थे। आपके बच्चे आपको हैरान कर देंगे ऑफ व्हाट दे आर केपेबल ऑफ डूइंग। लास्ट ऑफ ऑल जो मैं कहना चाहता हूँ, दिस इज आल्सो चांस फॉर यू to understand the importance of not letting them get disturbed as far as their routines are concerned. ब्रेन के अंदर जो केमिकल हमारे बायोलॉजिकल रिदम को कंट्रोल करता है उसको कहते हैं मेलाटोनिन। बायोलॉजिकल रिदम कंट्रोल करता है हमारे हॉर्मोन्स को, हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को। तो अगर खुदा न खास्ता हमने रातों को जागना और दिन को सोना शुरू कर दिया तो हमारा बायोलॉजिकल रिदम खराब हो जाएगा। अगर बायोलॉजिकल रिदम खराब हो गया हमारा डिस्टर्ब प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन की वजह से, तो फिर क्या होगा कि हमारे हार्मोनल मैकेनिज्म्स भी चेंज होंगे। वो भी एक रिदम को फॉलो करते हैं और वो डायरेक्टली लिंक्ड हैं। इफ देयर आर डॉक्टर्स हियर दे वुड एंडोर्स दैट कॉर्टिसोल सिक्रीशन फॉलोज अ बायोलॉजिकल रिदम। एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जिसके हिसाब से, और कॉर्टिसोल का बहुत बड़ा रोल है हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने में और मॉडिफाई करने में। हमारे जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, हमारे जो साइटोकाइंस हैं, हमारे जो न्यूरो ह्यूमोरल मैकेनिज्म्स हैं, वो सारे के सारे इन्फ्लुएंस होते हैं बायोलॉजिकल रिदम से। तो कहीं बच्चों में और आप में ये बायोलॉजिकल रिदम ना खराब हो जाए। सुबह उसी तरह से उठ के तैयार होना, और स्कूल बेशक आप घर में लगा लें, वैसे तो पीटीवी ने चैनल खोल दिया है स्कूल लग रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन आप घर में भी एक स्कूल लगा सकते हैं। हाँ, इसमें आप जरा टीचर बना दीजिए अपने बच्चे को और खुद उसके स्टूडेंट बन जाइए। लेकिन सुबह उठ के तैयार होके और उसी तरीके से 6 से 8 घंटे पढ़ाई करना, काम करना बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल और इम्पोर्टेंट होगा, और उससे उनके बायोलॉजिकल रिदम भी खराब नहीं होंगे। कॉन्सिक्वेंटली उनका जो कोविड-19 के बारे में रेजिस्टेंस है और जो इम्यून सिस्टम है, वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर उलट हो गया तो हमारा इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा एंड वी माइट लूज द बैटल अगेंस्ट कोविड-19। Right, sir. Sir, what are the warning signs that older adults or people with disabilities are experiencing stress or anxiety, and how can we help them? See, the first thing that will happen to a person who is oldish is he is going to start to feel disoriented. जिससे जो भी हमारे लोग थोड़े से एज में हमसे ज़्यादा होते हैं, वो बहुत जल्दी डिसोरिएंट जैसे ही उनका फ़ोकस ख़राब होता है ना चीज़ों के ऊपर, से ज़्यादा तवज्जो नहीं रख सकते, तो उनके वक़्त का एहसास टाइम का वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप ये देखें कि वो सुबह को दोपहर और दोपहर को शाम समझना शुरू हो गए, तो दैट मीन्स इट्स अ वेरी अर्ली साइन ऑफ अ डिस्टर्ब्ड functioning of their brain. So keep a very close watch। नमाज़ों के टाइमिंग, फिर वो भूलना शुरू हो जाते हैं, वो भी एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स है बहुत अर्ली। सो जो फर्स्ट थिंग दैट स्टार्ट्स टू अफेक्ट अ पर्सन हु इज लिटिल मोर इन द ईयर्स देन पीपल ऑफ माय एज इज दिस, दैट दे वुड गेट इनटू कॉग्निटिव डिसफंक्शंस एज वी कॉल देम। वो खराब होना, उसके साथ फिर वो एंग्शियस हो जाएंगे, घबराहट का शिकार हो जाएंगे। मुझे कुछ हो तो नहीं रहा, दे माइट स्टार्ट टू फियर दैट दे आर गेटिंग, मतलब थोड़ी सी उनको खांसी आई किसी और वजह से, तो उनको लगेगा कि शायद कोविड की वजह से हो रही है। तीसरा ये कि मैं ये भी देखता हूँ कि बड़े लोगों में वो बहुत ज़्यादा खबरें सुनना शुरू कर देते हैं। नॉट दैट के यंगर लॉट नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा खबरें, और खबरों में आपको पता है कि डिन डना जो म्यूजिक है वही काफ़ी होता है एक बड़ी उम्र के आदमी के लिए, कि उसका दिल दहल जाएगा, ये पता नहीं क्या क़यामत आने लगी है अभी। और फिर हमारे माशाल्लाह जो बड़े हैं उनके अंदर चूँकि रिलिजियस सेंस भी ज़्यादा डेवलप हो चुकी होती है, ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो जाते हैं, तो वो बाज़ औक़ात अफ़वाहों से बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं। अफ़वाहों को बिलीव करना शुरू कर देते हैं बहुत तेज़ी से। दे बिकम मोर एमेनेबल टू यू नो व्हाट पीपल आर सेइंग, एंड देयरफॉर उनको ज़रा बचा के रखिए उस तरह की अफ़वाहों से। उनको हर वक़्त इस तरह के प्रोग्राम एंड ऑफ द टाइम्स टाइप के, और ख़त्म होने लगा है सब कुछ, बर्बाद होने लगा है, दिस इज़ द बस ये ख़त्म हो गया, बस ये वही था टाइम जिसका फ़लाँ किताब में ज़िक्र था ना, ये वही आ गया है और अब मैं जा रहा हूँ, ख़त्म होने लगा है सारा कुछ। सो दिस कैटास्ट्रोफाइज़िंग एस्पेक्ट ये भी हमारे बूढ़ों में आना शुरू होता है। दीज़ आर सम ऑफ द साइंस। Sir, how important is this situation to build or rebuild family bonding? Because the lockdown has happened, the whole family members are like in a sort of situation where they are at home now.
So, what are your tips for them? देखिए मैं इसके बारे में थोड़ी सी मिक्स्ड फीलिंग मैं ये समझता हूँ कि हम जो हमारे मॉडर्न टाइम्स है ना इनके अंदर हमें आदत सी होगी हुई है अपनी प्री कोविड लाइफ में थोड़ी थोड़ी तन्हाई की है मतलब हम लोग ना घरों में बहुत ज्यादा जैसे ऐसे एनमेश्ड होते थे ना पहले अब नहीं है अब हम बहुत थोड़ा स्पेस की इम्पोर्टेंस बढ़ गई है बच्चों को भी स्पेस चाहिए बेगम को भी स्पेस चाहिए मियाँ को भी स्पेस चाहिए अब्बा अम्मी को भी स्पेस चाहिए सबको ना स्पेस की आदत सी होगी तो ये समझ लें कि अचानक अगर आपने ऐसे एक दूसरे को पकड़ लिया और जुड़ गए और तो गड़बड़ शुरू हो जाएगी सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट इजी फॉर पीपल टू एकदम adjust to a new arrangement of being at home 24 hours and to be cozy with each other constantly तो ये इसके अंदर कुछ टाइम तो ऐसा आएगा जहां पे इट विल बी परफेक्टली ओके कि लोग जो है वो एक दूसरे के करीब ज्यादा वक्त गुजारें gradually understand the importance and significance of personal space of respect for personal space and understanding that it's okay to be alone uh, and useful to be alone हैविंग सेड दैट सोशल डिस्टेंसिंग का लफ्ज मैं हर फोरम पे कह रहा हूँ जहां जाता हूँ ये कहता हूँ कि ये गलत सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है फिजिकल डिस्टेंसिंग है फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर 2 मीटर 6 फीट 10 मीटर जो भी आप रखना चाहते हैं रखिए जो भी साइंस कहती है वो रखिए लेकिन इसका मतलब तन्हाई नहीं है इसका मतलब कनेक्टेडनेस को खत्म करना नहीं है जो मैंने पहले अर्ज किया था कि कनेक्टेडनेस और रिलेटेडनेस ये नहीं खत्म होनी चाहिए इस हवाले से कि जी हम दूर बैठ रहे हैं तो दूर बैठ रहे हैं लेकिन कनेक्टेड बैठ रहे हैं दूरी में भी मोहब्बत होती है बाजुकात हमारी मोहब्बत बढ़ती है अगर दूरी हो जाए हमें कितनी मोहब्बत है अल्लाह से कितना दूर है हमसे लेकिन कितना पास भी है so this is a time to understand the importance of distance playing a certain role, a protective role for us at this point in time. So it's okay to be physically a little distant, but it's also important to understand that this distance is not emotional. This is a distance that is geographic and this is physical. ये एक और भी मौका है जहां आपके पास आपको पहली दफा ये समझ आया है कि ये कितनी खूबसूरत चीज है ये जो आला जिसको हमने बहुत डिटेस्ट करना शुरू किया हुआ था ये कितना जबरदस्त है और इसने कितना हमें इससे जॉय दी फराहम की हुई है कि घरों से बैठ के काम कर रहे हैं घरों से बैठ के तो आपको पहली दफा पॉजिटिव यूज ऑफ इंटरनेट पॉजिटिव यूज ऑफ सोशल मीडिया पॉजिटिव यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पॉजिटिव यूज ऑफ कनेक्टिविटी सोशल कनेक्टिविटी समझ आएगा तो वो जो हर वक्त आप बच्चों को कहते रहते थे क्या घुसे रहते हो मोबाइल में क्या घुसे रहते हो तो अब आपको समझ आए कि इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है दिस इज अ वेलकम चेंज इन आवर लाइफ वी आर डिस्कवरिंग न्यू यूजेस ऑफ इंटरनेट ब्यूटिफुल यूजेस ऑफ इंटरनेट and you are discovering relationships and connectivity with those people who are far far away from you otherwise geographically this time around so बड़े मजे का टाइम है रिलेटेडनेस के हवाले से रिश्तों को स्ट्रेंथन करने के हवाले से And also, this is the internet that has made it possible to have this talk with you. Um, Yes, and with that, we have actually reached to the end of our session. I would like to say special thanks to Pharmatech for supporting this session, and of course, Dr. Moddit for taking time out of your busy schedule and guiding us through your knowledge. I hope the listeners has enjoyed this session as well. Thank you once again, sir. Thank जी you. मैं बस एक आखिरी बात पार्टिंग बहुत जरूरी कहना चाहता हूँ अगर हमारे पास 1 मिनट है Yes, sure. Please. मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली हमने जितनी भी बातें अभी की हैं उसमें इस बात का ख्याल रखें कि अगर ये सब हमने किया ना तो इससे एक तरह की आप वैक्सीनेशन कर रहे हैं अपनी अगेंस्ट कोविड-19 दिस इज अ वैक्सीन ये सोशल वैक्सीन है फिजिकल हेल्थ की वैक्सीन है मेंटल हेल्थ की वैक्सीन है जो कि आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगी एंड मैं साइंस की बात कर रहा हूँ दिस इज कॉल्ड साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी आप साइकोलॉजिकली अपने इम्यून सिस्टम्स को इन तमाम बातों से जिनका कुछ का मैंने जिक्र किया है आपके सामने but having said that there is another immune mechanism trigger that we have and that's the vaccine called the spiritual vaccine ये एक टाइम आया है हमारी जिंदगियों में टू कनेक्ट विद आवर सेल्व्स एंड विद आवर क्रिएटर with the greater wisdom of nature whoever that is for you irrespective of your faith ये टाइम आया है जहां आपको ये समझ आनी चाहिए कि आप रिजिलियंट हो सकते हैं
अगर आपको importance and significance समझ आ जाए of what faith can do for you. Faith is a great immunizer, a great vaccine to have. Whoever you have the faith in is not important, but it is. इससे आपको स्पिरिचुअलिटी से डायमेंशन समझ आएगी कि आपको चीजों के सही मानी, जिंदगी क्या है, मौत क्या है, मोहब्बत क्या है, ख्याल क्या है, रिश्ते क्या है, गहरे मीनिंग चीजों के समझने का पहली दफा मौका मिला है. जिस शख्स को जिंदगी में जिंदगी के गहरे मानी समझ आ जाए, वो स्पिरिचुअली एलिवेट हो जाता है. दिस इज आवर चांस टू एलिवेट आवरसेल्व्स स्पिरिचुअली दिस टाइम. यूज दिस, and I tell you, people who are spiritually elevated are always likely to survive crisis, survive wars and battles much better than those who are not spiritually elevated. Thank you so much, sir. Thank you so much. And I hope our listeners have enjoyed this session. And Allah Hafiz. Hafiz.